Hello students, you are welcome to the Digi classes of Christ Church Convent, Gadawara. I am Amit Toshniwal. This video is for class 11th, subject economics, chapter number 1, part 4. You see on your screen what is economics, which already have been dealt in previous videos. Okay, now we shall study definitions given by different economists. Wealth-centered definitions. Wealth-centered definitions given by Professor Adam Smith, who is known as father of economics. Then his followers like J.B. Say, Walker, Senior and J.S. Mill, they also followed Adam Smith. Okay, so their definitions are given. You must learn definition of J.B. Say and Walker. Important definitions these are. Okay. Now you see next slide. What definition says about economics? In wealth-centered economics, they have empathized on wealth. Man was secondary, whereas wealth was taken primary. It produces narrow sense, and there was no provision for welfare of man. Only importance was given to wealth. Moreover, the term wealth was used in narrow sense, and scope of economics become limited. So only economic activities related to wealth were considered by them. So they were criticized. And further, Alfred Marshall propagated definitions related to economics, which were called welfare-centered definition, where man was in center and its welfare, socio-economic welfare was prominent, and wealth was given second place. According to Marshall, political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life, which examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. It means, what does it mean? It means on the one side a study of wealth, and on the other side, and more important, that is, it is a part of a study of man. Okay, so how welfare-centered definitions are differ from wealth-centered definitions. In wealth-centered definitions, the only importance was given to wealth, whereas in welfare-centered definition, more importance was given to study of man. So you can compare this in that way. In wealth centered definition,
wealth was prominent, whereas in welfare centered definition the study of man was prominent. His followers, Marshall's followers, Pigou, Pynchon, J.M. Keynes, Cannon, Clark, etc. also supported it as a material welfare. अब you remember, now you see, क्या डिफरेंस देखते हैं आप कि अभी भी वेलफेयर तो है बट नॉट सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशियो वेलफेयर इकोनॉमिक. सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में अभी बात नहीं कर रहे वो. अभी भी वो केवल मटीरियल वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब स्टिल दे आर स्टिक टू मटेरियलिज्म. उनको ऐसा लगता है, मार्शल को भी ये लगता है कि आदमी का अध्ययन तो होना चाहिए, लेकिन आदमी को जितना सुख या जितना आनंद या उसका भला कल्याण धन से हो सकता है उतना किसी और से नहीं हो सकता. उसे भी अभी यही लग रहा है. कल्याण की बात तो करता है वो, बट बेस्ड ऑन एथिक्स एंड एथोस. whereas in वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशंस वहाँ पर एथिक्स और ईथोस को ताक पर रख दिया जाता है. ये नहीं देखा जाता कि धन कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है. केवल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पैसा आना चाहिए. यानी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस और ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज़ वेल्थ. केवल धन का अध्ययन करती है, बाकी किसी और का नहीं. यहाँ पर धन किसके लिए? मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए. ये डिफरेंस है इनके बीच में, दोनों के बीच में. ठीक है. सो नाउ यू सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन योर स्क्रीन. यू आर सीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन. तो सबसे पहली चीज़ हो गई इजी एंड क्लियर. डेफिनेशन क्लियर कट है. तो यहाँ पर बात बताई जा रही है, दो लोग हैं, मैन एंड वेल्थ. दूसरी चीज़ है रिलेशन टू ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. मीन्स इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ विच अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑर्डिनरली डज फॉर हिज लिविंग. इट मीन्स इट इंक्लूड्स द इनकम अर्निंग एंड इनकम एक्सपेंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग. वो कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, वो दोनों एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की जाएंगी. थर्ड है स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर. तो इट एक्सक्लूड्स ऑल अदर एस्पेक्ट एक्सेप्ट मटीरियल. तो व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग? लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, socialism, etc. So Marshall restricted the scope of economics to the study of only those economic activities which can have money measure. It means the measuring rod of activity is money. They should be in monetary form. Fourth is study of both मैन एंड वेलफेयर. मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन. यानी कि मैन हैज़ गॉट प्राइमरी प्लेस एंड वेल्थ हैज़ गॉट सेकेंडरी प्लेस. सो स्टडी ऑफ वेल्थ का मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर, दैट्स इट. इकोनॉमिक, नॉट सोशियो. Fifth point is social science. According to Marshall, economics is a social science. It means man is living in society and working for himself and for the society. It means earning for himself and spending to purchase material. तो इट इज़ सोशल साइंस. सो इट डज नॉट स्टडी आइसोलेटेड पर्सन्स. आइसोलेटेड पर्सन्स कौन से हो गए? जो कि समाज से कटे हुए लोग हैं.
जो आर्थिक गतिविधियां नहीं करते, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं करते, लाइक बेगर्स, सेंट्स, साधु संत महात्मा, सेजेस, एंड दोज हुज मेंटल स्टेटस इज़ नॉट नॉर्मल। तो जो एबनॉर्मल लोग हैं, पागल है ना, उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाएगा। देन सिक्स्थ पॉइंट इज ही कंसीडर्स इकोनॉमिक्स बोथ साइंस एंड आर्ट एंड he gives economics a broader sense. Okay, then he was criticized by Robbins. जो भी कोई चीज़ है उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। पहले वेल्थ सेंटर्ड थी, एडम स्मिथ ने बनाई, उसमें कुछ कमियां थी तो उसमें कुछ सुधार किया मार्शल ने। तो फिर नई डेफिनेशन कौन सी आ गई? वेलफेयर सेंटर्ड। वेलफेयर सेंटर्ड में भी अभी कमी है। क्या कमी है? इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में तो बात है, लेकिन सोशल वेलफेयर के बारे में बात नहीं हो रही। इकोनॉमिक्स को केवल मटेरियल तक ही सीमित करके रख दिया है इसमें। तो फिर इसकी भी कुछ बुराइयां हुई, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया। किसने किया? रॉबिन्स ने। तो रॉबिन्स कहता है, पहला वाला पॉइंट देखो, नैरो आउटलुक। मार्शल की डेफिनेशन का जो आउटलुक है वो नैरो है। क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक डज नॉट स्टडी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉर इट डज स्टडी द एक्टिविटीज़ ऑफ आइसोलेटेड मैन। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ऐसा फील करते हैं कि इकोनॉमिक्स मस्ट स्टडी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल पर्सन्स। ऑल पर्सन्स में उन्होंने ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी इंक्लूड करो, जो एबनॉर्मल हैं, जो भीख मांगते हैं, बेगर्स हैं, सेजेस हैं, टेम्पल्स हैं, इन सबको भी उसमें इंक्लूड करो। ठीक। देन सेकंड पॉइंट इज क्लासिफैक्टरी। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक जो है वो इम्प्रैक्टिकल है इनकी मार्शल की डेफिनेशन में। वेलफेयर इकोनॉमिस्ट इंक्लूड्स ओनली दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक्स विच इज़ कैपेबल ऑफ मॉनिटरी मेजरमेंट। मॉनिटरी के अलावा वो किसी को नहीं करते। ओके। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया, जो कि गलत है। तीसरा पॉइंट फिर वही आ गया, मटेरियलिस्टिक है। वेलफेयर इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल्स ओन कंसिडरेशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट मैटर टू साइंटिफिक इंक्वायरी। ऐसे कई मटेरियल और थिंग्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट नहीं करते, बट दे आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक सेलिंग ऑफ लिकर, प्रोडक्शन ऑफ लिकर। लिकर मीन्स वाइन, शराब। तो शराब का प्रोडक्शन करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, लेकिन समाज का भला नहीं होगा, है ना। तो उससे ह्यूमन वेलफेयर नहीं हो सकता। तो ये मेटलिस्टिक है केवल। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ ओनली सोशल इंडिविजुअल्स, नॉट आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स। So behavior of an isolated individual is the same as the behavior of a social individual, ऐसा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मानते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स को दोनों का अध्ययन करना चाहिए। फिर नॉर्मेटिव साइंस, वेलफेयर डेफिनेशंस जो हैं वो इकोनॉमिक को नॉर्मेटिव साइंस में कन्वर्ट कर सकती हैं, कर देती हैं। जब भी इकोनॉमिस्ट लोग वैल्यू जजमेंट को इंडल्ज करते हैं, वैल्यू जजमेंट मीन्स व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड,
तो दे ऑलवेज फेल टू जस्टिस द ग्रोथ ऑफ प्योर इकोनॉमिक थियोरी एंड इट इज़ डन बाय मार्शल, देयरफॉर इट इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबिन्स. Sixth point is the clause of ordinary business of life is confusive. What can be ordinary business of life? Robbins interrogates कि मार्शल की डेफिनेशन कह रही है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, तो वाई ऑर्डिनरी बिजनेस ओनली, वाई नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंस? To earn money, to gain to gain economic welfare, some extraordinary activities are also done. So why are not included? क्यों उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है? उनको भी इंक्लूड करना चाहिए. तो in fact studies of all activities where they are ordinary or extraordinary which satisfy human wants should be studied in economics. इसलिए उनकी बुराइयां की गई. ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ योर वीडियो. दिस इज लेसन नंबर 1 पार्ट 1. यू राइट दीज क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर नोट्स. ओके, थैंक यू.